कुछ नहीं होना। और की कोई टेंशन नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी से कोई नहीं है ऐसा कि कोई टेंशन ही नहीं है। बस तुम्हें दिक्कत हो रही है इंडिया बैठे, तो कोई सीन नहीं है भाई। इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर से हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में हैं इस वक्त और हमारे इवैक्यूएशन के लिए सरकार से मांग करते। ਦੋਸਤੋ, ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਨਾਟੋ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਬੰਬਾਰੀ ਕਾਰਨ। ਖੰਡਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਉਜਾੜ ਭੂਤੀਆ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਭੰਡ ਮਤਲਬ ਕਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਬਹਿ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਸੋਚੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਾਟੋ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਉਲਟਾ ਹਥਿਆਰ ਲਾਬੀ ਨੇ ਉન્નਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਨਾਟੋ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪਿਆਦਾ ਬਣਾ ਗਿਨੀ ਪਿਗ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰਸ਼ੀਆ ਖਿਲਾਫ। ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਹੋਊ, ਜੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਨਾ ਸਮਝ ਅਤੇ ਨਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਨਾਟੋ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਖੱਟਣਗੇ? ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਵਿਕਸਿਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਧਕੇਲਣ ਲਈ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਕਸਾਊ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਆ, ਇਰਾਕ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਕਰੇਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਸਮਝ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੜੇ ਸਫਲ ਪੋਪੂਲਰ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਯੋਗਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ। ਹੱਸਣ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀਅਨ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਇਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਕਿਸੇ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।
हो जाना, कुछ नहीं होना। हाँ, और क्या नाम वो होने लगा था, रशिया ने वापस ले लिए टैंक्स, उसका बारे में कुछ? सब बकवास है, कुछ नहीं है। मीडिया कह रही है, मैं तो अपनी टीआरपी बढ़ाऊंगा, आज ये बस बढ़ानी है। अभी यही हमें मसाई तो कोई न्यूज मिली है, मिलती तो है नहीं है, मिली है इसी कोई खींच लेते हैं, बस यही सब चल रहा है, पता तो है ही है सबको। फैंस मिल के हाँ कुछ भी नहीं है, बस वही था कि पेरेंट्स भी ज्यादा पैनिक हो गए थे, ऑब्वियसली कोई भी होगा। आज आज छत्ती 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 भगाओ भगाओ भगाओ, दबाए वो देखो, उधर दिखाओ पढ़ने वाले Come here, guys। तो सर वॉर की सुनी थी हमने सर, आज हो गया सर वॉर? नहीं हुआ है, नहीं हुआ। उम्मीद पे खरे नहीं उतरे रशियंस। आपको मन था देखने का, थ्रिल बहुत ज्यादा, बट नहीं हो पाया। हाँ? थ्रिलिंग हुआ नहीं, तूफान। बस तो टैंक्स वगैरह वापस ले लिया हमने सुना है। टैंक्स हाँ नॉर्दर्न वाली साइड पे हैं, पर अभी भी बेलारूस साइड पे हैं अभी। क्या था आपको? हाँ पुतिन चाचा है हमारे। आजा तो कुछ ऐड करना चाहोगे सर? यार ऐड यही करना चाहूंगा कि जो भी है वॉर हो रहा है ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहाँ पे हमें न्यूज आ रही है कि रशिया इन्वेड कर जाएगा आज रात को 9 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 1 घंटा 20 मिनट बाद। और हाँ और यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आ रही है, स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा, यू कैन मैसेज मी। तो वॉर की कोई टेंशन नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी से कोई नहीं है ऐसा कि कोई टेंशन ही नहीं है बस। तो भाई देख लो, हमें नहीं है दिक्कत, तुम्हें दिक्कत हो रही है इंडिया बैठे, तो कोई सीन नहीं है भाई, छोड़ दो। और जो इंडिया जाने की सोच रहे जिन्हें टिकट बुक होगी वो चले जाओ, बाकी मत जाओ भाई, कुछ भी नहीं, सीन ही नहीं है। कुछ भी कीजिए, हमें यहाँ से निकालिए की और खाकी पे स्टूडेंट्स के जैसे हम नहीं चाहते कि हमारा सिचुएशन आए। गवर्नमेंट से, इंडियन एम्बेसी से हमारी ये गुहार है कि थोड़ा सा हमारी हेल्प करें। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, 10 दिन हो गए हम वेट करते करते, प्लीज जल्दी करिए जो भी करना है आप लोगों को। हम लोग बहुत ज्यादा ये है, नेटवर्क भी चला गया था नीचे में, हम लोग बहुत परेशान, बहुत हेल्पलेस हो गए हैं। हम लोग लाइट भी चली गई है पूरे हॉस्टल की, पानी भी नहीं है बाथरूम में, बिल्कुल पानी भी नहीं आ रही है बाथरूम में, और हम खुद से जा भी नहीं सकते। हमें सबने बोल रखा है, हमें यहाँ पे फालतू में फंसाया जा रहा है। हमें सब यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे तुम लोग सुमी के बाहर मत जाओ क्योंकि वहाँ पे सेफ नहीं है, वहाँ पे जगह जगह माइंस है, ये है वो है, हमारे रेलवे ट्रैक बंद है, हमारा एयरपोर्ट फंक्शनल नहीं है, तो हम कैसे जाइए? और अभी यहाँ से बच्चे निकले हुए थे जिनको गोली मार दी गई यहाँ पे। अब कौन मारा गोली हम लोग को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बच्चे गए थे, खुद से गए थे, उनको गोली मार दी गई रास्ते में। हम लोग नहीं जा सकते, हम लोग सेफ नहीं, हम लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ करे हम लोगों के लिए, निकाले यहाँ से, नहीं तो हम लोग सब मारे जाएंगे, सब मर जाएंगे यहाँ पे। इतनी बड़ी बड़ी ब्लास्ट हो रही है, सब मरेंगे यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लीज हेल्प करे, प्लीज गवर्नमेंट ऑफ रशिया के थ्रू हमारा कोई ना कोई करिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रशिया बॉर्डर क्लोज है हमारे। में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। बताया जाता है कि यहाँ से निकलने के लिए हमें वेस्टर्न बॉर्डर्स पर जाना होगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि बीच में जितनी भी सिटीज हैं वो ऑलरेडी बॉम्बार्डेड है, ऑलरेडी वहाँ पे ब्रिजेस का डिस्ट्रक्शन हो चुका है। हमारे लिए वहाँ से ट्रैवल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरी बात कि हमें कभी भी बंकर्स में शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें नहीं पता होता कि नेक्स्ट मोमेंट हमारे साथ क्या होगा। फूड की स्कैरसिटी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, कभी भी नेटवर्क्स जैम हो सकते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में है इस वक्त और हमारे इवैक्यूएशन के लिए सरकार से मांग करते हैं। Request you to send help as soon as possible. We please request our Indian embassy or Indian government, please help us out. Please evacuate all Indian students. There are more than 15. एम्बेसी ने कोई एडवाइजरी हमारे लिए नहीं दी थी, कीव के लिए दी थी, कीव स्टूडेंट्स के लिए। अगर उस समय हमें एडवाइजरी मिल जाती तो आज इतने बच्चे जो फंसे थे वो आज फंसे ना होते। एम्बेसी वालों ने कुछ हेल्प नहीं करी हमारी वहाँ पे, हमारे एजेंट्स ने हेल्प की हमारी। इंडियन एम्बेसी में जाने के बाद उन्होंने हमें 2 दिन का वहाँ स्टे दिया, लेकिन कोई इतनी हेल्प नहीं हुई क्योंकि फूड नहीं था खाने को उनके पास,
वाटर नहीं था, वॉशरूम फैसिलिटी कुछ भी नहीं। सब अपने आप करना पड़ रहा है। बसेस वगैरह जो अब लास्ट 3-4 बसेस निकली है वो सीनियर्स के थ्रू, और जो वहाँ हमारे देख रेख करते हैं हमारे हेड है जो हॉस्टल्स वगैरह के, उन्होंने करवाई हैं। उधर और कोई हेल्प नहीं है। सरकार है, कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, पर उस सरकार ने हम लोग कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे, पहले करेंगे। ये किसने कहा था आपसे? इंडियन एम्बेसी ने। इंडियन एम्बेसी ने बहुत गलत किया। अच्छा, ये कहा कि टॉयलेट साफ करिए फिर जाएंगे। जो पहले उन्होंने बोला उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। वॉलंटियर्स टू वॉशिंग, किसी की ऐसी हालत नहीं थी, कोई नहीं उठा। जब उन्होंने बोला कि जो पहले वॉश करेगा उसको पहले लेके जाएंगे, तब सब चले गए, क्योंकि बच्चे जाना चाहते थे, वहाँ से निकलना चाहते। तो आपने वहाँ किसी अधिकारी को, मंत्री इतने सारे गए, किसी को नहीं कहा? वहाँ पे हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें निकलना था वहाँ से। वो जगह बिल्कुल मैं कह सकता हूँ एक हेल है, ठीक है। अगर आपको जीवन में नर्क देखना है आप वहाँ पे चले जाइए, ऐसी जगह थी। तो हालत तो वहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ दोस्त अभी फंसे हुए हैं, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है उधर। वो वहाँ के कुछ वॉलंटियर्स हैं, वो खाना बांट रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी मतलब जो हमारे बच्चे को यहाँ तक ले आए, मैं यही कहती हूँ कि हमारे पीएम मोदी हमेशा जीतते रहे, हमारे बच्चे को ऐसी एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पे पता नहीं था कि हम लोग नेक्स्ट टाइम में हैं या नहीं है। क्या मोदी जी ने और मतलब हमारी सरकारों ने, इवन दो किसी भी स्टेट की सरकारों, बट हम लोग अपने लिए कहेंगे कि एक बार मैंने फ़ोन किया, लिटरली एक बार, ठीक है, तो उसी टाइम पे लाइक मेरे को रिव्यू मिला है, उसका रिस्पांस मिला है पंजाब सरकार की तरफ से। एंड मोर ओवर मोदी जी उन्होंने अपना रोल बहुत अच्छी तरह से प्ले करा है। तो जस्ट एक ही लास्ट में वही चीज़ होती है कि मोदी है तो मुमकिन है, एवरीथिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गर्ल। हम एक बार उनको कॉल करा था, इवन एम्बेसी वालों ने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करा, हमें फूड प्रोवाइड करा गया, मतलब बहुत अच्छा हमारे साथ मतलब सब कुछ हुआ। Everything was well organized.